So in the earlier video, we have seen how cell means life. Right. Now, cell is the basic unit of life. Cell is the basic unit of life. The word life stands for living organism. This living organism may be plant or any animal. Right. Now, since we are saying cell means life, life means living organism, what it means? Cell is the basic constituent of लिविंग ऑर्गेनिज्म. सेल है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट. अब लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर भी रहेगा. लिविंग ऑर्गेनिज्म का कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर भी रहेगा और लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो खुद की एंटिटी मेंटेन करने के लिए उसको फंक्शनिंग करना जरूरी है, तो उसका फंक्शन भी रहेगा. मतलब स्ट्रक्चर और फंक्शन ये दोनों साथ में रहेंगे तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म करके कहलाया जाएगा और इट विल बी कॉल्ड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म. नाउ सिंस वी said cell is the basic constituent of living organism, it also means cell is the basic structural constituent and cell is the basic functional constituent of any living organism. So this statement can be rewritten as cell is the basic structural as well as functional unit of living organism. मतलब हर एक सेल का बेसिक स्ट्रक्चरल हर एक ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है वो सेल होता है. नाउ वी नीड टू प्रूव हाउ इट इज स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. फॉर दिस वी नो देयर आर basically two different type of living organism. First is unicellular and multicellular. This is what you have already studied. In case of unicellular organism, single cell is present. These are single cell organisms. In case of multicellular organism, more or numerous cells are there. It means, in case of multicellular organism, these cells they come together, join and form an organism. Therefore, we can say that these cells are the structural unit of any organism. These cells, when they make up organism or giant organism, or when many number of cells comes together, they form organism. In that case, these cells or different type of cells, they perform different functions. अगर कोई मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें अलग अलग सेल्स या अलग अलग टाइप की सेल्स वो अलग अलग टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करती है, तो क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल वो सभी फंक्शंस परफॉर्म करता होगा जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग सेल करती हैं? हाँ, सिंगल सेल भी वही फंक्शन परफॉर्म करता है जो अलग अलग सेल्स परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ये जो सिंगल सेल है ये सिंगल सेल में सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम सेलुलर ऑर्गेनेल्स और सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं. So cell organelles they come together, they form a cell. These cell organelles they have different functions, and these functions together, the functions performed by cell organelles together, they confer living entity to this single cell, thereby it can be called as unicellular organism. यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स ये हमारे वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में
सभी फंक्शंस परफॉर्म करता है, जिसके वजह से वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाया जाता है। और उसी टाइप के फंक्शंस अलग अलग सेल्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में परफॉर्म करते हैं। लेकिन जब हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो जनरली होता ये है कि ये जो अलग अलग सेल्स या फिर सेल्स है जो क्लस्टर फॉर्म करती है, ये सेल्स जनरली टिश्यूज फॉर्म करते हैं, टिश्यूज। और ये जो टिश्यूज है, दिस टिश्यूज आर नथिंग बट ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स, मींस group of similar type of cells having similar form, structure and function. They together they form a similar function. So similar function performing cells. These are the cells which are present in cluster, are similar in form, structure, are similar in form, structure, performing same function. This type of cluster of cells are called as tissues. Now these tissues they form organs. They form organ, and this organ basically it perform a function where we call it as if the tissues are performing function. If we go back again, then we can say that that particular cell is performing a function, a particular kind of function. Now, to know this, how it happens, then we have to see some example. अब देखिए कि मैं जो आपको एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ वो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लग सकता है, लेकिन आप सिर्फ समझ लो इस चीज को। हम ये देखेंगे कि लाइफ कैसे एग्जिस्ट करती है। ये थोड़ा सा पार्ट हमने कल कवर करने की कोशिश की थी। देखिए reproduction is one of the important process for prolonging of life. In case of reproduction, male gamete, that is called as sperm, and female gamete called as ova or egg. They fuses together, means इन दोनों का फ्यूजन होगा, and due to fusion there is formation of another cell. There is formation of another cell. This cell is called as zygote. It is a single cell. ठीक है, क्या बन रहा है? zygote. It is a single cell. This zygote it undergoes repeated division. Zygote undergoes repeated division. देखिए आपने 10th स्टैंडर्ड तक शायद यहाँ तक पढ़ा zygote. ये zygote का है जो एक सेल है. This cell is the first cell of new life. मतलब इस ये सेल से ही जो नया ऑर्गेनिज्म बनने वाला है वो इसी सेल के डिवीजन से बनेगा, यानी यही एक सेल का डिवीजन होगा और उससे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है। इसीलिए हम ये सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट कहते हैं, क्योंकि यही स्ट्रक्चर है, यही स्ट्रक्चर से बाकी का स्ट्रक्चर बनने वाला है। और दूसरा यही सेल है, ये सभी जो सेल ऑर्गेनिज्म है इनका डुप्लीकेशन होगा, बाकी और सेल ऑर्गेनिज्म बनेंगे, फिर ये सेल का डिफरेंशिएशन होगा, टिश्यूज बनेंगे, ऑर्गन्स बनेंगे, इसलिए हम इसको फंक्शन यूनिट भी कहते हैं। ओके, तो zygote will undergo repeated division, then it forms some other structure. I will write the name, no need to remember right now, only try to understand. Zygote will form a structure called as morula. It forms a structure called as
morula. Then this morula will again be cleaved and it will form a structure called as blastula. It forms a structure called as blastula. This blastula will again undergo cleavage and it forms a structure called as gastrula. So morula, blastula and gastrula. These gastrula are the cells which are present in gastrula. They arrange themselves in a ring-like structure. So there will be 3 rings of cells. There will be 3 rings of cells. So such type of rings will be there. And this each ring of cell we call it as germinal or germinal layer. We call it as germinal or germinal layer. This germinal or germinal layer, it gives rise to different tissues and thereby organs. These organs with some other body parts. Say for example, in case of circulatory system, the main organ is heart. But heart along with blood vessels, namely arteries, veins, blood capillaries, all those together form a system which we call as circulatory system. So likewise this organ along with some body parts, it forms organ system. These organ systems, they comes together and they form whole organism. So this is how a new life is being generated from these 2 cells which are fusing together. Now when we come back to see these 2 cells, what we find, this male gamete is from father and this female gamete is from mother. These together are fusing. So the characteristics which are present in male gamete and female gamete both are coming together in a zygote. Means zygote is having characteristic both from, it carries the characters from father as well as mother. तो क्या हुआ कि फादर और मदर इन दोनों के कैरेक्टर्स, ये दोनों सेक्स सेल्स ने, स्पर्म ने और ओवा ने क्या किए, इनका फ्यूजन हुआ, इनसे बना झाइगोट। और झाइगोट ये नई लाइफ ऐसी सेल है कि जिसमें फादर और मदर दोनों के कैरेक्टर्स मौजूद है। इसीलिए ये जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है, ये ऑर्गेनिज्म में फादर और मदर के कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं। यहाँ के कैरेक्टर्स ये नए बीइंग में आए, न्यू लाइफ में आए, इसी को कहा जाता है हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक। Right. So this is how the genetic information is transferred from father to the offspring or the newborn or young. ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि सेल के बारे में। जैसे हमने ये कहा था कि सेल वो सभी फंक्शन परफॉर्म करता है जो कि एक लाइफ करते हैं, एक होल ऑर्गेनिज्म करता है। तो ये होल ऑर्गेनिज्म जिसमें इतने सारे टाइप के टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम्स है, क्या ये ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल में जो फंक्शंस होते हैं वो सभी फंक्शंस होते हैं और वो कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। देखिए कि इन जनरल अगर सेल ऑर्गेनेल्स की बात अगर हम करते हैं तो सेल ऑर्गेनेल में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दिखेगी। न्यूक्लियस, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
देन इज माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम and so many structures, right? So this nucleus is control center. This nucleus is called as control center. Endoplasmic reticulum, it is required for protein synthesis. It is also required for synthesis of lipid. Mitochondria is called as powerhouse also. Cytoplasm is there. Now the function of cytoplasm is to allow transfer of substances from one place to another. Now how it happens? साइटोप्लाज्म में एक जेली जैसा सब्सटेंस है। ये साइटोप्लाज्म जेली जैसा सब्सटेंस होने की वजह से ये सेल के सभी ऑर्गेनल्स तक पहुंचता है, और जिसके वजह से साइटोप्लाज्म का यूज करके then the substances may move from here and there or they can get mixed. Golgi body, center for packaging and transport. It forms vesicles, right? Lysosome, it contains digestive enzymes. It contains digestive enzymes, so it performs the function of digestion. It is also called as suicidal bag because if it bursts, it will digest the whole cell. राइट, तो देखिए कि सेल में कंट्रोल सेंटर है जो हमारे बॉडी में ब्रेन के जैसा काम करता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये प्रोटीन सिंथेसिस और लिपिड सिंथेसिस का काम करता है। हमारे बॉडी में ऐसा कुछ सिंथेसिस होता है इनसाइड, लेकिन जनरली हम मटेरियल बाहर से लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और सबसे हमारे बॉडी में हम क्या करते हैं, बाहर से सब्सटेंस इंजेस्ट करते हैं, वो सेल तक पहुंचता है जहां पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन वगैरह होकर वहां पर फिर एनर्जी फॉर्म होती है। साइटोप्लाज्म अलाउ द ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंसेस, मतलब सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरे जगह तक मूव करना। हमारे बॉडी में होता ये है कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने का काम करता है। देन गोल्गी बॉडी, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट। हमारे बॉडी में पैकेजिंग तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन ट्रांसपोर्ट का जो काम है ये अगेन सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। लाइसोसोम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर डाइजेशन। हमारे बॉडी में इसके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। यहां पर हो ये रहा कि सेल में जो ऑर्गेनल्स है वो काम कर रहे हैं और सिमिलर टाइप ऑफ का मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स कर रहे हैं। यानी कि ये सेल ऑर्गेनल्स ये पर्टिकुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए वही काम करते हैं जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन सिस्टम करती है। इसलिए सेल को फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। इसलिए सेल को फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। अगर हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर ही रहे तो थोड़ा आगे बढ़ के ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप के सिस्टम किस तरह से काम करती है उसके बारे में भी हम 1-2-3 मिनट में देख लेते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये सभी सिस्टम्स या फिर सेल रिप्रोडक्शन इसके बारे में क्यों बता रहा हूँ शुरुआत में। हो सकता है कि आपको ये अर्लियर कुछ 5 मिनट का जो अपना लेक्चर है ये थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लगा होगा, लेकिन यही चीजें है जो आपको आगे जाके पढ़ना है। ओके, मैं आपको ये सभी चीजें इसलिए बता रहा था
कोई ऑर्गेनिज्म को लेकर के या फिर कोई एनिमल को लेकर के या फिर स्पेशल ह्यूमन बीइंग को लेकर के, क्योंकि ये सभी सिस्टम्स के नाम आपने पढ़े हुए हैं। ये सिस्टम्स के नाम आपने पढ़े होने की वजह से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ह्यूमन बीइंग के बॉडी में जो अलग अलग सिस्टम्स होती है, यानी ऑर्गन सिस्टम्स होती है, जिनके नाम आपने कल ही पढ़े हैं, वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमें ये देखना है कि ये सभी के सभी सिस्टम एक दूसरे के साथ लिंक करके किस तरह से काम करते हैं, क्योंकि हमने ये कहा था कि जहां पर भी ऑर्गन सिस्टम है वहां पर ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है और वहां पर डिवीजन ऑफ लेबर है। कल का अगर आप लेक्चर देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा कि देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे घर की बात करते हैं तो हमारे घर में कंट्रोल सेंटर कौन होता है, हमारे पापा जनरली, तो वो सभी चीजों को कंट्रोल करते हैं। अब डिवीजन ऑफ लेबर किस तरह से, देखिए आपके मम्मी किचन में काम करेंगे तो किचन का जो काम है पूरा वो मम्मी को दिया गया है। आपकी अगर बड़ी बहन या कोई छोटी बहन होगी तो उसके तरफ कुछ झाड़ू पोछा करने का काम होगा, वो काम करेंगे। आपके बड़े भैया या छोटे भैया होगा तो उनके पास वो काम होगा कि वो जाए फ्लोर बिल पर और वहां से फ्लोर लेके आ जाए। किराना सामान लाने का काम किसी और की तरफ होगा। तो हर एक काम डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। सिमिलर टाइप ऑफ काम आपने स्कूल में भी किए होंगे, जैसे कोई एनुअल फंक्शन वगैरह होता है तो उस फंक्शन में देखिए कि किसी को स्पोर्ट्स इंचार्ज बनाया जाता है, किसी को क्लास मॉनिटर बनाया जाता है, किसी को स्पोर्ट्स मॉनिटर बनाया जाता है। यहाँ तक कि अभी की जो आपकी नई एजुकेशन सिस्टम है, इस सिस्टम में तो लंच मॉनिटर भी देखे हैं हमने। तो इस तरह से काम को डिस्ट्रीब्यूट करना, हर एक पर्सन ने या कोई एक इंडिविजुअल ने अलग अलग टाइप का काम करना है ग्रुप में, उसको कहा जाता है डिवीजन ऑफ लेबर। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर हमारे बॉडी में किस तरह से होता है वो थोड़ा बहुत देखने की हम कोशिश करें। तो ह्यूमन बीइंग की बॉडी में जो सिस्टम्स है वो सिस्टम्स में सबसे पहले सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। मैं आगे सिस्टम लिख देता हूं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। द नेक्स्ट सिस्टम इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट। Next system is digestive system. Next is circulatory. Next is excretory. Next is reproductive. Next is endocrine, and next is central nervous system. ये सभी सिस्टम्स एक साथ में मिलजुल कर काम करते हैं, तभी कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म बन सकता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है ब्रीदिंग and exchange of gases. Breathing and exchange of gases. Locomotion and movement, इसका काम है कोई भी मूवमेंट करना या फिर लोकोमोशन करना। मैं वही वर्ड्स यहाँ पर भी लिख रहा हूँ। इसका मतलब ये होता है कि मूवमेंट यानी आप कोई भी जगह पर खड़े रह के अगर इधर उधर, जैसे कि मैं यहाँ पर आपके साथ बात कर रहा हूँ तो मेरे लिप्स की मूवमेंट हो रही है, लेकिन मेरा बॉडी एक्सिस सेम जगह पर सेम पोजीशन पर घूमा, ये इस प्रोसेस को कहा जाता है मूवमेंट। लेकिन जैसे मुझे लिखना है आगे जाके, उधर अगर मुझे लिखना है तो मुझे दो पर आगे जाना पड़ेगा। ये जो मैं मेरी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये प्रोसेस को कहा जाता है लोकोमोशन। तो मूवमेंट और लोकोमोशन ये दोनों डिफरेंट प्रोसेस है। लोकोमोशन में मूवमेंट आती है, लोकोमोशन में मूवमेंट आती है। मूवमेंट क्यों आती है? मुझे अगर यहां से वहां जाना है तो मेरे पांव मूव हो रहे हैं, यहाँ पर मसल्स कुछ काम कर रही है, बेंडिंग का वगैरह, ठीक है। तो लोकोमोशन में मूवमेंट आती है, मूवमेंट में हर बार लोकोमोशन नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका काम है डाइजेशन करना और एब्सॉर्प्शन करना। नेक्स्ट इज सर्कुलेटरी सिस्टम।
is for as transport. It is the transport center. Excretory system. It is required for expelling unwanted material. Reproductive system. It is required for prolonging of life. Endocrine system. It secretes hormones. Okay? These hormones are required for functioning of various body structures and then in general functioning of the organ, that is vein or normal functioning of the organ. Central nervous system. It is the control center of body. देखिए ये सभी इनके फंक्शंस हैं. ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. इसमें क्या है, हम ऑक्सीजन बॉडी के अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर लेते हैं. ठीक है, ये सिस्टम ने अपना काम कर लिया ऑक्सीजन लाने का और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले जाने का. ये काम करने के लिए हमारे बॉडी के कोई ना कोई ऑर्गन को मूवमेंट करनी पड़ी होगी. मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस. लेकिन अगर इनहेल करना है मतलब सांस लेना है, मैं जब सांस लेता हूं तो मुझे ये दिखता है कि मेरी चेस्ट आगे पीछे ऐसे मूव होती है, मतलब मूवमेंट हो रही है चेस्ट में कुछ ना कुछ, क्योंकि लंग्स की मूवमेंट हो रही है. मतलब कि रेस्पिरेटरी सिस्टम इज एसोसिएटेड विद रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट. ये मूवमेंट होगी. रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम अकम्प्लिश करने के लिए हमारे लंग्स की मूवमेंट होना जरूरी है, राइट. तो ये ऑक्सीजन यहां से फिर लंग्स में जाएगा. बराबर. अब देखिए लंग्स ने अपना काम कर लिया, तो लंग्स के पास से ये ऑक्सीजन आ जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम में यानी ब्लड में. तो ये लंग्स के आजू बाजू में हमेशा ब्लड वेसल्स होती है, यानी रेस्पिरेशन की जो मूवमेंट होगी, ये मूवमेंट के थ्रू जो ऑक्सीजन आएगा वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन कर रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम थ्रू ब्लड. ये ऑक्सीजन ब्लड में आ गया. ठीक है, अब ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन हमें चाहिए एनर्जी बनाने के लिए, राइट. तो क्या एनर्जी बन जाएगी? नहीं. एनर्जी बनाने की जो प्रोसेस है वो तो ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, जिसके लिए ये ऑक्सीजन आया है. ये एनर्जी बनाने की प्रोसेस में जो कुछ भी हम फूड स्टफ खाएंगे वो फूड मटेरियल जब ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो एक प्रोसेस होगी. ये प्रोसेस के थ्रू क्या बनेगा, एनर्जी बनेगी. ये एनर्जी जो है ये सेल में बनेगी, सेलुलर प्रोसेस, राइट. और वो सेल में एक्यूमुलेट रहेगी या सेल में रहेगी और वो बॉडी के अलग अलग फंक्शंस जब परफॉर्म करते हैं दैट विल बी परफॉर्म एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी. तब ये एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा, राइट. देखिए क्या होगा अभी कि हमने ये चारों सिस्टम्स एक दूसरे के साथ किस तरह से लिंक है वो बताने की कोशिश की. देन एक्सक्रीटरी सिस्टम. अब ये फूड है, फूड मटेरियल में से यूजफुल सब्सटेंसेस जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुई, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस हुई, एनर्जी बनी. अब ये प्रोसेस है, प्रोसेस में रिएक्ट होते हैं, प्रोडक्ट बनता है. प्रोडक्ट में ये एनर्जी के साथ और कोई बाय प्रोडक्ट भी बन सकता है, या फिर ये जो फूड मटेरियल है ये रॉ फॉर्म में आता है, इसमें न्यूट्रिएंट रहेंगे और कोई अनएब्सॉर्बेबल या फिर अनडाइजेस्टेबल मटेरियल भी रहेंगे. जो अनडाइजेस्टेबल मटेरियल रहेंगे वो अनडाइजेस्टेबल मटेरियल एक्सपेल करने का काम कौन करेगा, ये एक्सक्रीटर सिस्टम. कौन करेगा, एक्सक्रीटर सिस्टम, राइट.
रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है। इसका काम यही है कि एक्सटेंशन ऑफ लाइफ और फॉर प्रोलॉन्गेशन ऑफ लाइफ। एंडोक्राइन सिस्टम एंड देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम्स में हार्मोन्स होते हैं। ये एंडोक्राइन सिस्टम अगेन ये सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ लिंक्ड है, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम में जो कुछ भी हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं वो हार्मोन्स ब्लड के थ्रू यानी सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू एक बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचते हैं और वहां पर वो अलग अलग जगह पर जाने के बाद अपने एक्शन देते हैं। जैसे कि एंडोक्राइन सिस्टम में हमारी बॉडी में पैनक्रियाटिक ग्लैंड है, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा। पैनक्रियाटिक ग्लैंड में 3 अलग अलग पार्ट्स होते हैं। उसमें का एक पार्ट है जिसको कहा जाता है बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जहां से इंसुलिन सीक्रेट होता है। ये इंसुलिन क्यों चाहिए हमें? ताकि हमारे ब्लड की शुगर लेवल मेंटेन रहे। ये ब्लड की शुगर लेवल मेंटेन रखने के लिए एंडोक्राइन सिस्टम ने जो यानी पैनक्रियाज ने जो इंसुलिन सीक्रेट किया है वो ब्लड में जाना चाहिए। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करेगा? वो इंसुलिन को लेगा और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में सर्कुलेट करेगा और जहां-जहां शुगर की जो क्वांटिटी है ब्लड में वो क्वांटिटी को रिड्यूस करने का काम होगा ये एंडोक्राइन सिस्टम के हेल्प से। उसके बाद में सबसे लास्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इनर्वेशन यानी कि जैसे कि आपके घर में इलेक्ट्रिक केबल होते हैं हर एक रूम में, इनका एक नेटवर्क रहेगा। तो क्या होता है कि हम यहाँ से बटन दबाए, उधर से फैन चालू होगा, उधर से लाइट चालू होगा, टीवी चालू होगा। उसी तरह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक नेटवर्क होता है। ये नेटवर्क नर्व्स के थ्रू होता है और ये नर्व एंडिंग या फिर नर्व्स हमारे बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं होते हैं। उसके थ्रू यानी ये केबल समझ लीजिए नर्व्स को, उसके थ्रू हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जो कुछ भी एक्टिविटी प्रॉपरली चल रही है या नहीं चल रही है उसके ऊपर कंट्रोल रखने का काम जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है। तो हमने ये देखा कि हमारे बॉडी में अलग अलग सिस्टम्स है, उनका अलग अलग काम है, लेकिन ये काम हमेशा इंटरलिंक्ड है। इसलिए हमारे बॉडी में जो 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम कहेंगे ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि सिस्टम्स एक दूसरे के साथ आकर के काम कर रही है। ऐसे ही आपको आगे आने वाले 2 साल आप खुद, हम, आपके पेरेंट्स ये सभी लोगों को इन्वॉल्व होके ये 2 साल में आपको अच्छे से पढ़ाई करके आपकी जो भी अलग अलग टाइप के कॉम्पिटिटिव या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन है वो अच्छे स्कोर से पास करना है। पास तो आप ही को करना है। फिर हमारा रोल क्या है? हमारा रोल यहाँ तक है कि हम आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। आपका क्या काम है? हमने जो कोई भी पढ़ाया अच्छे से उसको अच्छे से ग्रास्प करो और घर जाके हमने जो आपको बताया है वो सभी चीजें अच्छे से करो। दूसरा आपका रोल ये पड़ता है कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप डाउट्स रेज कर कीजिए। अगर आपको घर में कोई डाउट्स है तो वो भी डाउट्स आप दूसरे दिन पूछ सकते हो या फिर हमें थ्रू कॉल पूछ सकते हो। ये सभी करके आपको किसी भी हालत में अच्छे मार्क लाना चाहिए। इसलिए मैंने ये कहा कि आप, आपके पेरेंट्स और हम ये सभी ये ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन जैसा है वैसे ही आपका स्कोर लाने के लिए अच्छे से ये भी एक सिस्टम है। तो ये सिस्टम का आपने प्रॉपरली यूज करना चाहिए। मैंने आपको ह्यूमन बीइंग के बारे में ही क्यों बताया? क्योंकि आपको इसके पहले 8, 9, 10th में हुआ है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो भी बायोलॉजी का आपको इंट्रोडक्शन देना था जिसमें मैंने प्लांट्स के बारे में आपको कुछ नहीं बताया है, ठीक है। मैंने ये सोचा कि आपको प्लांट्स के बारे में आपने उतना नहीं पढ़ा होगा, एक्सेप्ट आईसीएसई का जो सिलेबस उसमें प्लांट्स के बारे में मैंने जो भी चैप्टर्स कर लिखे, लिविंग वर्ल्ड छोड़ के आपको एनिमल किंगडम है यानी प्लांट किंगडम है, मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स है, उसका रेस्पिरेशन था, आपको फोटोसिंथेसिस है, ये ट्रांसपोर्ट है, ये सभी चैप्टर्स हैं आपको। लेकिन बाकी सीबीएसई और स्टेट बोर्ड की बुक में नहीं होने की वजह से मैंने वो आपको एग्जांपल नहीं बताया, ठीक है। तो होप सो कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी स्टार्टिंग विद द एक्चुअल सिलेबस एंड द एक्चुअल सिलेबस स्टार्ट्स विद द चैप्टर सेल। एक्चुअल सिलेबस स्टार्ट्स विद द चैप्टर सेल, इसलिए मैंने सेल के बारे में इतना सब कुछ आपको बताने की कोशिश की, ठीक है।